ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਅਨੇਕ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ, ਨਾ ਅਨੇਕ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਏਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਕੇ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤੀ। ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਵੈਰੀ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਵੱਡਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ तमाम ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਨੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਏਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜੋ ਘੋਰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ ਸੀ, 1469 ਈਸਵੀ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। दरअसल भागा भरा दिन से जब महाराज दा आगमन होया और आगमन दे नाल ही दिन ते रात सदीवी याद बन गए। वो दिन भी अमर हो गया, वो रात भी अमर होई, क्योंकि उस रात नूं, उस दिन नूं एक अमर पुरुष दा आगमन होया। अमर पुरुष सिर्फ व्यक्तियां नूं ही अमर नहीं करते, बल्कि दिन ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਤ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਜੋ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਦੀ ਆਗਮਨ, ਆਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੈਸੇ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ
बाहड़े असुर अधम अभिमानी तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निध सज्जन वीरा। दसम ग्रंथ विच साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब दे धरत अवतारा। जब जब संसार दे विच अनर्थ होंदा है तद तद अवतारी पुरुष संसार ते आउंदे ने। और ये श्री कृष्ण जी दे अमर वाक ने कि ऐ अर्जन जद जद भी धर्म की गिलानी ते हानि हुंदी है मेरा आगमन होंदा ही रहिंदा है, मैं आउंदा ही रहना। दरअसल वो परिपूर्ण परमात्मा ज्योति नाम किसी दे अंदर महान जोत उजागर करके जगत नूं संदेश ते उपदेश देण लई आउंदा है। बहुती गर्मी बहुती तपश कड़कदी हुई लू इस गल दा आगमन है कि बरखा होवेगी, बरसात होवेगी। हुम है, गुम है, तपश है, सेक है, लू है। सियाणे कहंदे ने हुण बदलां दे आउण दे विच देरी नहीं, हुण बरखा दे होण दे विच देर नहीं है। जुल्म है, तशद्दद है, अनर्थ है, घोर अत्याचार है। तो धार्मिक पुरुष कह देंदे ने कि हुण प्रभु कोई ना कोई अवतार धारण करेगा। समाजिक तौर पे, राजनैतिक तौर पे और धार्मिक तौर पे जद ए देश पस्तियां दे खड्डे ते जा गिरिया उदों गुरु नानक दा आगमन होया, उदों गुरु नानक दा अवतार होया। तुलसा दाई दे मुखारबिंद तो निकले बचन ये ते कोई सूर्य आया है, ये ते कोई आफताब आया है। जगत ते हर बच्चा रोंदा होया जन्म लैंदा है। ये ठीक है कि पशुआं दे बच्चे खामोशी नाल जन्म लैंदे ने, किसी हद तक पंछियां दे बच्चे अंडियां दे चों चहचहांदे हुए निकलते हैं, पर मनुखी बच्चा रोंदा होया ही जन्म लैंदा है। और ये रोना किसी हद तक जीवन भर कायम रहिंदा है। रोंदा होया जमदा है, रोंदा होया जीवदा है और रोंदा होया ही मर जाता है। ये मनुख दा अभाग है, मनुख दा दुर्भाग है। अगर ये रोंदा होया ही जमे ते रोंदा होया ही मर गया, जीवन यात्रा निष्फल चली गई, जिंदगी अकारत चली गई। ऐ पुरख जे तू रोंदा होया जमे तां कम से कम रुखसत होण लगिया ते मुस्कुराहट होवे। अगर रुखसत होण लगिया मुस्कुराहट है तो समझ लो जिंदगी सफल हुई, आवना सफल होया, जीवना सफल होया। तो अक्सर मनुखी बच्चे जगत दे रोंदे हुए जन्म लैंदे ने। रूहे जमीन ते एक ऐसा कारामद महान पुरुष दा आगमन होया जो हसदा आया है। और तुलसा हैरान है, हसदे हुए जन्म, बालक दे बुल्लां ते मुस्कुराहट है, चेहरे ते नूर है, हासा है, खिड़खड़ाहट है। इत्थे तक ही कहना पएगा कि जो रोंदा होया आया है ये रोवेगा, ये रुलाएगा, पर जो हसदा होया आया है, मुस्कुरांदा होया आया है, इन्हें खेड़े वंडने ने, इन्हें खुशियां वंडनियां ने, इन्हें हसना है, इन्हें हसाना है, इन्हें जगत दी झोली विच आनंद पाना है ते खुशियां पानियां ने। तो जगत गुरु बाबे दा आगमन होया है मुस्कुरांदे होया, हसदे होया। पिता कालू जी दी, तृप्ता जी दी पहली औलाद दा जन्म कालू जी दे सौरे परिवार विच होया। तृप्ता जी दा उन्हां दिनां विच वासा माता पिता दे घर विच सी। बच्ची दा जन्म होया ते नानी दी रसना तो निकलिया ये ते नानकियां दी। नानी दा बड़ा प्यार बई ये ते नानी दी है, नाने दा बड़ा प्यार बई ये ते नाने दी है। ते जद नाने दे मुंहों निकलिया नाने दी है, नानी दे मुंहों निकलिया ये नानी दी है, तो परिवार विच ये गल चल पई ये ते नानकियां दी। नाम पै गया नानकी। ये नाम धुर दरगाहों आया, सुभाविक आया, अंतर आत्मे चों इस नाम ने जन्म लिया नानकी। मुद्दत पा राय भोए दी तलवंडी विच कत्तक दी पूर्णमाशी नूं सन 1469 ईस्वी नूं तृप्ता जी दी कुख तो पिता कल्याण दास जी दे घर विच दूसरी औलाद दा जन्म होया। और तृप्ता जी ने इस बालक नूं चुक के नानकी दी गोद विच पाया, उस मासूम नानकी दी गोद विच, ते आखिया ए नानकी दा नानक
ये नानकी दा वीर नानक। इस तरह एक मां दे मूहों नाम निकलिया और एक नाम माता दे मूहों निकलिया। भाव पुत्री दा नाम नानी ने रखिया, पुत्र दा नाम माता ने रखिया। किसी रस्मों रिवाज की छाप नहीं, बल्कि इन्हां नामां दे उत्ते निरंकार की छाप है, करतार की छाप है, परमात्मा की छाप है। इस तरह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का नाम संस्कार हो गया और दुनिया विच वाकई ये पहला नाम, ये अदुੱਤੀ नाम। कयामत नामे दे बानी वली नियामत अली शाह का कहना है, बूद नानक आरफे मरदे खुदा, राज हाय मारुफत जो राहे खुशा। जगत विच एक नानक नाम दा खुदावन ताला दा नजदीक खुदा दे राज नूं समझण वाला प्रगट होवेगा, जो दुनिया दे उत्ते खुदा दे गुझे भेद मुनज़र आम करेगा, प्रगट करेगा। और जो एक सीधा ते सरल ते सौखा मार्ग परमात्मा की प्राप्ति का जगत नूं दसेगा। बूद नानक आरफे मरदे खुदा, राज हाय मारफत जो राहे कुशा। सो इस तरीके दे नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन होया ते आप सहजे सहजे वड्डे हो रहे हैं। बच्चियां नाल आप खेडदे ने, पर खेडदे च भी धुनी सतनाम दी लांदे ने। आम लोकां दा किसी हद तक धर्म भी खेड है, खिलौना है, पर बाबे दा खेडना भी धर्म है, साधना है, समाधि है। भगत कबीर जी महाराज कहते ने, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोगों ने रब नूं खिडौना ही समझे और खिडौने नाल ते मनुख खेडदा। तो जगत लई धर्म एक खिडौना है, एक खेड है, पर बाबे लई खेड भी धर्म है, बाबे लई खेड भी परमात्मा है, बाबे लई खेडना भी समाधि है। तो आप बच्चियां नाल खेडदे ने, गल सतनाम दी करदे ने, गल परमात्मा दी करदे ने, गल अकाल पुरख दी करदे ने और इस बिस्माग अवस्था च करदे ने। इतने रंगे हुए ढंग नाल करदे ने, इतनी एकाग्रता दे नाल करदे ने कि आप दी एकाग्रता दा असर बच्चियां ते भी पिया और बच्चे भी समाधि लीन होए। धन ने वो बच्चे जिन्हां नूं गुरु नानक दे संग खेडना नसीब होया और गुरु नानक दे संग समाधि लाण दी जाच आई और गुरु नानक दे बोल नूं सुन के वो परमात्मा नाल जुड़े, अकाल पुरख दे नाल जुड़े। आप दियां इन्हां रुचियां नूं वेख के माता पिता नूं चिंता जरूर होई। लिहाजा आप जब गालबन 8 वरियां दे होए तो माता पिता ने गोपाल पांदे कोल बिठाया। गोपाल जी आप इन्हां नूं वक्त दी विद्या पढ़ाओ, वक्त दा ज्ञान दो और ये पटवारी दे पुत्र ने, इन्हां ने काम धंधा करना है, व्यापार करना है, होर पसारा इन्हां ने पसारना है। इसलिए आप इन्हां नूं महान विद्वान बनाओ। कहंदे ने पाठशाला दे जद गुरु नानक दी तख्ती दे उत्ते गोपाल पांदे ने ऊड़ा लिखे और ऊड़ा इस गल दी सूचना भी है कि यह लिपि गुरु नानक तो पहले सी और यह लिपि कुछ ऐसियां पुस्तकां दे च भी मिली है जो गुरु नानक देव जी महाराज तो पहले दियां लिखियां हुई हैं। लिहाजा भाषा विभाग ने भी इस संबंधी शोध करके दावा किया है कि लिपि बहुत पुरानी सिर्फ इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनाया है ते अपनान करके इस लिपि का नाम पै गया गुरमुखी। इस लिपि की पढ़ाई जारी की गुरु अंगद देव जी महाराज ने और बाद विच सहजे सहजे ये लिपि पंजाब दे भाषावां विच और बोलचाल विच अखरां विच लिखी जान लगी और इस ढंग दे नाल तमाम धार्मिक सिख जगत का साहित्य, इतिहास, ज्ञान इस लिपि विच लिखिया गया। ऊड़ा लिखिया गोपाल पांदे ने ते गुरु नानक देव जी महाराज पुछदे ने इसका अर्थ। तो पांदा कहंदा एक अखर दा ते कोई अर्थ नहीं, आखिर एक दो अक्षर जुड़न पूरा शब्द बने ते फिर उसके अर्थ हो सकते हैं। एक दा ते कोई अर्थ नहीं, ऊड़े दा ते कोई अर्थ नहीं। तो बालक गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, पांदा जी ये ऊड़ा बेमैनी है। हाँ बेमैनी है, ये कोई मैने नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं।
तो गुरु नानक देव जी महाराज एकदम अपने वस्त्र झाड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, पांदा जी फिर बेमैनी अखर मैं नहीं पढ़ने, और इस दुनिया दे मैं बेमैनी अखर पढ़न वास्ते नहीं आया। जिस अखर का कोई मकसद नहीं, जिस अखर का कोई अर्थ नहीं, जिस लफ्ज दे कोई मैने नहीं, वो मैं नहीं पढ़ने। आप जैसे चले ने ते पांदे ने डांट के रोके, नानक जी गल सुनो, एक अखर का कोई मैना नहीं होता, एक अखर दे कोई अर्थ नहीं होंदे। सतगुरुदेव जी महाराज कहने लगे, जे अर्थ आउंदे होवन ते ऊड़ा भी किसी दिशा की प्रेरणा देंदी है, ऐड़ा भी किसी मार्ग की सूचना देंदा है, सस्सा भी किसी होंद नाल जोड़दा है ते कक्का भी किसी दुनिया में पहुंचाता है। तो हैरान हो गया पांदा, और वो कहता है ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक अखर दे लिए कोई मैने हो, कोई अर्थ हो, लिख के दसो, मैनू दसो। तो मेरे पातशाह ने अपने उस्ताद के सामने पट्टी लिखी है, पांदे के सामने पट्टी लिखी है, और ये पट्टी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आसा राग के अंदर दर्ज है, और जिसका सिरलेख है आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी। गुरु नानक ने तख्ती लिखी, गुरु नानक ने पट्टी लिखी, जिसनू पढ़ के पांदा समाधि दे चला गया। सस्से सोए सृष्ट जिन साजी सबना कारण एक भया। ऐ पांदे तू सस्से तू ए प्रेरणा क्यों नहीं लेंदा कि उसने ही सारी सृष्टि की साजना की है, वही साजनहार है। सस्से तू ए प्रेरणा लै कि वह साजनहार है, वो सृष्टि का रचयिता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आप दी पट्टी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज की 52 अखरी है, ते भगत कबीर जी महाराज की 52 अखरी है। एक एक अखर तो परमात्मा की दिशा की प्रेरणा लैनी। जैसे भगत कबीर भी कहना, ओ अंकार आद मैं जाना लिखे अर मेठे ताए न माना। ऊड़े तो मैं ये प्रेरणा ले कि वो जो ओ अंकार है वो अनादि है, वो मेटिया नहीं जा सकता, वो बनाया नहीं जा सकता, वो आकार तो रह है। मैं इस ऊड़े तो वो अंकार की प्रेरणा लईए, मैं इस ऊड़े तो वो अंकार दे नाल जुड़े, और मैनू इस ऊड़े ने एके दा बोध करा दिता है। दरअसल कबीर दा ते ऐसा कहना है, अखर अंदर त्रिभुवन धारे। अखरां दे ही ते तीन लोकां दा ज्ञान है। ते गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान, अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलन बाण अखरां सिर संजोग वखाण। जगत दे सारे संजोग मिजोग ज्ञान ध्यान संगीत गाना बजाना, इहदी सारी विद्या अखरां दे विच है। इस वास्ते गुंगा मनुख ना कवि हो सकता है, ना दार्शनिक हो सकता है, ना संगीतकार हो सकता है। जिंदगी दे हर पहलू दे द्वार गुंगे लई बंद हो जाते हैं, क्योंकि उहदे कोल अखर कोई नहीं। आवाज है, अल्फाज नहीं, धुन ते है पर अक्षर नहीं है। ते अक्षरां दे नाल ही ते जगत दा ज्ञान दिता जांदा है और लिता जांदा है। इस वास्ते गुरु बाबा ते दावे नाल कहंदे ने, अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरां दे गीत होवे, अखरां दे ज्ञान होवे, ते अखरां दे बोध नाल परमात्मा दा बोध मिले। वो अखर बेमैनी नहीं हो सकते। एक एक अखर दे कोई मैना है, एक एक अखर किसी दिशा की प्रेरणा है, और एक एक अखर दे विच अमृत रस भरिया होया है। अगर अखरां दा बोध होवे, उस तख्ती नूं पढ़ के, उस पट्टी नूं पढ़ के, गुरु नानक दी बांह पकड़ के पांदा पिता कल्याण दास जी पास आया और आखण लगा, पटवारी जी मेहता जी थोड़े इस बालक नूं मैं नहीं पढ़ा सकता, और हकीकत यह है, सच्चाई ये है, ये जगत विच पढ़न वास्ते नहीं आया, पढ़ाने वास्ते आया है। ये कुछ समझण लई नहीं आया, ये समझाण लई आया है। जन्मां जन्मांतरां दे बंद द्वार अज इसने मेरे खोल दिते ने। अज मेरे द्वार, मेरे कपाट खुल गए ने। अज मैनू हकीकत दा बोध होया। मैं बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है, पर अफसोस मैं तो एक अखर भी नहीं पढ़िया। पर अज ये जो मेरे कोल बालक पढ़न आया है, इन्हें मैनू बहुत कुछ पढ़ा दिता। एक अखर विच बहुत कुछ पढ़ा दिता, बहुत सारा बोध करा दिता, बहुत सारा ज्ञान करा दिता। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं जद इस ढंग नाल पांदा नहीं पढ़ा सकिया, तो मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने मौलवी पास बिठाया। आख्या, मौलवी साहब तुसीं परशियन पढ़ाओ, इन्हां नूं फारसी पढ़ाओ। तां गुरु नानक दा उत्थे भी यही प्रश्न सी। मौलवी साहब
ਅਲਫ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸੋ, ਅਲਫ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਿਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਫ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, अलफ ते अपने विच अल्लाह नूं छुपाई बैठे। जो अलफ का उच्चारण नहीं कर सकता वो अल्लाह का उच्चारण किस तरह करेगा? जो अल्लाह का उच्चारण नहीं कर सकता वो अल्लाह नाल जुड़ेगा किस तरह, अल्लाह नूं समझेगा किस तरह? तो अलफ ते किसी मार्ग की प्रेरणा है, अलफ ते किसी नाल जुड़न का बहाना है, अलफ ते किसी मंजिले मकसूद तक पहुंचण का एक सहारा है। गुरु नानक ने यह वचन इतने बिस्मादी रंग च कहे, इतनी काबरता विच कहे, इतनी मस्ती विच कहे कि हंकारी मौलवी दा मस्तक झुक गया। और आपने गुरु नानक दी कदम बोसी की थी, आख्या हाँ ये अलफ ते अल्लाह दा ही सूचक है, ये अल्लाह ही अलफ दे समाया होया है ते ये अलफ ही अल्लाह नूं प्रगट करदा है। जद पिता कालू मायूस होए इस गल तो कि मौलवी ने और पांदे ने भी गुरु नानक नूं पढ़ाया नहीं, तो आपने स्वयं कोशिश की थी कि असी गुरु नानक देव जी महाराज नूं कुछ दसीए। पर जितना पिता कालू जी जगत बारे दसदे ने उतना गुरु नानक देव जी जगत दे करते बारे गल करते हैं। जितना पिता कालू संसार की गल करता है उस तो वध कई गुणा गुरु नानक देव जी महाराज निरंकार की गल करते। जितनी गल पिता कालू वपार दी करे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उतनी ही गल करतार दी करन। वपार ते करतार दा तालमेल ना बैठे, संसार ते निरंकार दा तालमेल ना बैठे, और इस तालमेल ना बैठन करके पिता ते पुत्र दा भी तालमेल ना बैठे। और पिता औखा ही रहा, जैसे जगत दे रहबरी पुरुषां तो मां बाप औखे रहने, उंज भी सियाणे कहंदे ने कि महापुरुषां तो गालबन 3 लोग फायदा नहीं उठा सकते। प्रथम मां बाप, दूसरे शरीक और तीसरे दुश्मन। ये महापुरुष नूं बहुत नेड़ियों नहीं देख सकते और ना ही जो है समझ सकते हैं। इस वास्ते वो उपरों उपरों वेख लेन ते दूरी बनी रहती है, संबंध नहीं जुड़ता। तो पिता कालू नूं इस गल की चिंता हुई कि मेरे घर दे ते वो पुत्र आ गया है जो सुधाई है, पर कौन पिता कल्याण दास नूं समझे और दसावे कि कल्याण दास जी पिता कालू जी ये सुदाई नहीं, ये सारे जगत नूं मत देना आया है, ये सारे जगत के भूत ने उतारन आया है, ये समग्र जिंदगी नूं एक ताल देण लई आया है और सारे संसार नूं उस एक निरंकार दे नाल जोड़न लई आया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज चाहे जिधरन विचरन, किसे पासे बैठन, घर दे च ने बाहर ने, गल एक दी कर देन, वेखदे एक नूं ने, बोलदे एक दे बारे ने। और नानक नाम बड़ा खूब है ना अनेक, जिहदे च अनेकता नहीं, जो एक नाल जुड़े है, एक दी गल करदा है, एक दे